15th, very good afternoon. 15th March, I ended my optional batch, and since then I'm traveling. That is what geography teaches you. Samjha? So if you read geography, if you learn geography, you become a traveler. And then you start enjoying your life. And even the perspective of your life changes. Many congratulations for opting geography, and don't worry, this is a packed class. A lot of people are on YouTube, a lot of people, I'm having my third workshop. It's a routine process for an institute, fine, to keep on adding more, and then finally the batch will come on 15th, fine. Should I presume that all of you have completely determined to take geography, or do you have any confusion? Anyone having any doubt whatsoever? So I will like to resolve your doubts first. कुछ भी doubts आता है about geography, let's work on the doubts. Let's create a conversation where everyone is completely committed to the cause of geography, and everyone has decided that yes, geography is the optional I want to take, so that you are not sitting in different workshops. बताओ कोई confusion हो तो बताओ, because some of my lectures are available on YouTube. They can always go through and find out the old things. I don't want to be repetitive. I want to share new ideas on geography, and I don't want to tell you that how great geography is as an optional. कोई confusion है तो बताओ, कोई question है तो बताओ. Geography has vast syllabus. ऐसा है कुछ क्या? देखो मेरा YouTube में जाके देख लेना पिछला class. I have told, and my old students knows that geography has the smallest syllabus among all the optional. This just may shock you, because people outside, जो senior students हैं, coaching institutes, they're all propagating this idea that geography has a vast syllabus. Ask them 3 questions. Where lies that vastness? कहाँ vast है दिखाओ. जो कहता है ना ज्योग्राफी वास्ट है, बड़ा सिलेबस है, उससे बस एक क्वेश्चन पूछो, ये रहा सिलेबस, दिखाओ क्या वास्ट है इसमें. What you will do? He will count the number of words. अरे देखो इतना 5 sections, 10 sections, 20 sections you have. Then tell him, read these sections. On one side you have settlement, other side you have settlement. That makes 2 sections. But for a student of geography, actually it is 1 section, that's settlement geography. In paper 1 you will have theoretical part, in paper 2 you will have case studies. समझा या नहीं? Even the topics are similar. तो आपको जवाब देने आना चाहिए. पहला जवाब क्या दोगे? कि topics like settlement geography, population geography, regional development and planning, environmental geography, they are paper 1 and 2, the syllabus is common, same syllabus hai. Only the case studies, illustrations and examples will vary. In paper 1 we use world examples, but in paper 2 we will be using Indian examples. That is the only difference. So you are going to verify this. मैंने last workshop में भी बताया था कि syllabus vast है, उसके लिए check करो. So you don't have 20 sections, you have actually 8 sections. समझ में आया? क्योंकि environment को 4 जगह जोड़ा. Biogeography is what? Environment. Then there is one environmental geography. नहीं? 2. There is one contemporary issues. 3. And the 4th half of climatology. ये 4 section तो एक है यार. तो सिलेबस वास्ट नहीं है. दैट वाज माय पॉइंट नंबर 1. अच्छी बात तो मिस कर गए आप दोनों.
आप लोगों ने समझाया नहीं इसको? सो एनी वन चैलेंजिंग यू दैट ज्योग्राफी हैज ए वास्ट सिलेबस, इट्स नॉट ट्रू। क्या पहला पॉइंट क्या बताओगे? आज हम लोग ऐसे ही कन्वर्सेशन करते हैं, प्रोफेशनली नहीं, ऐसे ही बात करते हैं। दिखाओ सिलेबस कि भाई साहब देखो ना, टॉपिक सब एक लिखा है यार। फॉर मी देयर इज वन सेटलमेंट ज्योग्राफी, फॉर द आउटसाइडर्स इट इज टू। फॉर मी देयर इज वन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, फॉर आउटसाइडर्स इट इज 4। पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज 1, रीजनल प्लानिंग इज 1। आप सिलेबस देख लेना। एक तो ये जवाब देना है। दूसरा, कितने टाइम में सिलेबस खत्म होगा, ये पूछते हो ना। कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा? इट इज लेस देन अदर ऑप्शनल्स एंड आई हैव प्रूव्ड दिस इन लास्ट 1.5 year. In the last 3 batches I have proved it with all kind of fun in the class, all kind of discussions in the class, all kind of political discussions in the class, all kind of secular in secular discussions in the class. सब करने के बाद भी 120 days maximum it takes, because it depends upon the methodology of teaching. ये सब मेथड पे डिपेंड करता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, ध्यान से सुनना। से आई स्टार्टेड जियोमॉर्फोलॉजी, सम ऑफ यू हैव बीन पार्ट ऑफ जीएस आल्सो, है ना। से आई स्टार्टेड जियोमॉर्फोलॉजी, तो आई स्टार्ट विथ अर्थ इंटीरियर, समझा, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब स्ट्रक्चर में क्या आया? क्रस्ट, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर से क्या बनेगा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या कनेक्टेड है? वॉल्केनिज्म, माउंटेन बिल्डिंग, अर्थक्वेक, समझा। तो दैट बिकम्स वन टॉपिक, उसी में खत्म। नाउ इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न अर्थक्वेक एज ए सेपरेट टॉपिक, वॉल्केनिज्म एज ए सेपरेट टॉपिक, तो फिर तो लंबा होगा। सो इट्स ऑल अबाउट द मेथोडोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग थिंग्स, एंड एक्चुअली ज्योग्राफी इज इंटर रिलेटेड साइंस। तो वो तो मेथड पे डिपेंड करता है। क्लाइमेटोलॉजी चलते हैं, वहां भी ऐसे ही है। यू लर्न विंड, प्लेनेटरी विंड। सेकेंडरी विंड क्या है? एयर मास। कॉलिजन ऑफ 2 एयर मासेस, फ्रंट। फ्रंट के अंदर क्या बनेगा? साइक्लोन। अब देखो 5 टॉपिक कनेक्ट हो गया ना। इट विल टेक 4-5 days to complete all these 5-6 big topics, because once you have started relating the air movement with air mass movement and then to cyclone वगैरह वगैरह, it becomes easy. तो ये मेथड भी है ज्योग्राफी पढ़ने पढ़ाने का। देन थर्ड इज कनेक्टिंग पेपर 1 विथ पेपर 2, समझा। मान लो यू आर लर्निंग माउंटेन बिल्डिंग इन पेपर 1, पर्वत कैसे बना, माउंटेन बिल्डिंग इन पेपर 1। नाउ in paper 2 you have Himalayan origin, nahi? So in paper 1 itself you can connect, and Himalayan origin can be completed then and there itself. समझ गया ना? तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। It's the biggest myth related to geography is the syllabus. Then there is a general question why you should take geography. क्यों ले geography in comparison to other subjects? तो एक तो सुनो ध्यान से, अगर पढ़ने में मजा आता है, हिंदी में बोले तो जिंदगी जीने में मजा आता है, क्यूरियस हो, एक्साइटिंग पर्सनैलिटी हो और अलर्ट हो, ऐसा लोग को ज्योग्राफी लेना चाहिए। हमसे लोग पूछता है मालूम क्या सर, साइंस है ले लूं क्या, आर्ट से ले लूं क्या, कॉमर्स से ले लूं क्या? मेरे पास कोई आंसर नहीं है यार। साइंस का ज्योग्राफी एक ही आदमी पढ़ सकता है, जो अलर्ट है, जो अंदर से खुश रहता है, वो ज्योग्राफी पढ़ो, बाकी मत लो। निगेटिव लोग को ज्योग्राफी नहीं पढ़ना चाहिए, समझा। एनीबडी कैन लर्न ज्योग्राफी बिकॉज ज्योग्राफी टीचेज यू ऑल द बेसिक साइंस। इट डजंट गो इनटू, तुमको क्या लगता है कि ज्योग्राफी क्वांटम फिजिक्स है? इट यूजेस सम बेसिक लॉज, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लेगा, कहीं कोरियोलिस, कहीं प्रेशर लॉ, यही सब करता है, कहीं गैस लॉ, ऐसे ही छोटा मोटा लॉ यूज करता है यार ज्योग्राफी। कब तक का? क्लास 10th का साइंस यूज करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ
एमएससी फिजिक्स चाहिए तुमको ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, बेसिक साइंस चाहिए. इवन दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन द क्लास. हु शुड टेक ज्योग्राफी, जल्दी बताओ. वन हु इज एक्साइटिंग अबाउट लाइफ, वन हु वांट टू लर्न, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, learning geography will have cascading effect. समझना, you are learning geomorphology, so you are learning about the crust, you are walking on the crust. Next topic is climatology, you are in the air, there is no connection. इसीलिए मैंने cascading कहा कि तुम एक में जियोलॉजी पढ़ रहे हो, रॉक पढ़ रहे हो, अर्थ का मूवमेंट्स पढ़ रहे हो, and after 15 days you are suddenly learning what? Air, atmosphere, atmospheric processes. You are in meteorology. तुम वेदर साइंस पढ़ने लगे. बताओ वेदर साइंस का रॉक से कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है. तो कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ ना? नहीं, रोलर कोस्टर राइड हो जाता है. एक बार तुम ऐसे चल रहे थे, अचानक बूम. तो जिसको लर्निंग का मजा लेना है वो ज्योग्राफी लो. थर्ड क्या होगा? ओशनोग्राफी. तुम चले गए हाइड्रोस्फीयर में, नहीं, पानी में घूम रहे हो. अब पानी में तुमको फिश पढ़ाया जा रहा है, वेव पढ़ाया जा रहा है, टाइड पढ़ना शुरू कर दिए. समझ में आया? फिर क्या हुआ? तुम एनवायरमेंट में चले गए, सॉइल में चले गए, फिर इकोलॉजी में चले गए, एंड सडनली फिर ह्यूमन पे आ गए. भाई इंसान कैसे बना? वी स्टार्ट विथ सम एंथ्रोपोजियोग्राफी. एंथ्रोपोलॉजी इज ए डिराइव्ड सब्जेक्ट फ्रॉम ज्योग्राफी. समझे? अब मदर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्या है? Anthropogeography. That part is called anthropogeography. And father of anthropogeography is Ratzel. उनकी किताब का ही नाम था Ratzel. खैर छोड़ो, this all we will learn after some time. But all I am telling you that geography is a very exciting subject because the realm of knowledge will suddenly open up for you. Settlement geography. तुम सोचो हाउस पढ़ रहे हो यार, तुम आर्किटेक्ट हो. नहीं, कितना मजा आएगा. हाउस टाइप पढ़ रहे हैं, सेटलमेंट टाइप पढ़ रहे हैं, विलेज टाइप पढ़ रहे हैं. ये हाउस होता है ना, दे मैनिफेस्ट हिस्ट्री, ह्यूमन इमोशन ऑल्सो, क्लाइमेट ऑल्सो. यू विल फाइंड नागा विलेजेस. नागा मणिपुर में चल रहा है ना लड़ाई, तो नागा विलेजेस आर ऑन द हिल टॉप. व्हाई दे आर हिल टॉप विलेजेस? दे वांट टू वॉच ऑल द एनिमी मूवमेंट्स. So villages in Nagaland are found on the hilltop. Most of you are from Gangetic Plains. Gangetic Plain meaning right from Rajasthan, Haryana to Bengal, Assam. ये पूरा Gangetic Plains है. So if you are from Gangetic Plains, you must understand the reason behind the clustering of the houses. हमारे यहाँ हाउस कैसे होता है, गांव कैसे होता है? Closely nesting houses. हाँ या नहीं? क्यों होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई, प्रोडक्टिविटी इज हाई, सॉइल ज्यादा फर्टाइल है. नहीं, राजस्थान में पॉपुलेशन डेंसिटी कम क्यों है? सॉइल फर्टाइल नहीं है. बिहार में सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि दुनिया का सबसे फर्टाइल सॉइल बिहार में है. अरे भाई वहां लोग आंगन में एक बीज डाल देते हैं ना, छत पे जाके इतना बड़ा बड़ा पंपकिन लटक जाता है. कितना खाएगा वो? हैव यू हर्ड एवर बिहार में आदमी भूख से मर गया? खा के मर रहा है. वहां खा के लोग मर रहा है. वहां जितना डेथ होता है डायबिटीज से, कैंसर से, वो खा खा के मर रहा है. तो ये देखो, ये ज्योग्राफी ही तुमको सिखाता है. अच्छा, वन एग्जांपल, आई वाज अबाउट टू फॉरगेट इट. द हाउस टाइप इन उत्तर प्रदेश, बिहार, एंड द विलेजेस आर क्लस्टरिंग. वी कॉल इट न्यूक्लिएटेड विलेजेस because of also the reason also could be foreign invasion. Gangetic Plain and Maharashtra, what is the difference? The difference is one of physiography. Maharashtra is a protected citadel. नहीं, एक bastion है महाराष्ट्र, चारों तरफ mountains है, plateau है, river valleys बहुत ही meandering और ill-defined valleys है. And what is Gangetic Plain? Monotonous flat land, anybody can invade and just kill you. So villages are showing clustering for protection. कि हमारे गांव में अंदर घुसेगा, गली का रोड कैसा रहता है बिहार यूपी में बताओ? नैरो, ऐसे ऐसे, और गली जाकर किसी घर में ही खत्म हो जाएगा. अगर तुम भागोगे भी तो कई गांव में फंस गए. तो ऐसा फंसाने वाला विलेज बनाया गया भारत में. समझा या नहीं?
तो even if you are learning settlement geography, you have so many things to learn. समझा? पूरा हिस्ट्री समझ में आने लगता है. This is how I started today telling you that geography is a very exciting subject. कि ब्रेन को बड़ा ओपन करता है. It gives you a different perspective to look at things, look at phenomena. ब्रेन अलग कर देता है बिल्कुल ये. मैंने आज पहला लाइन क्या बोला? Will become a traveler. Because your curiosity will grow as you are learning geography. Day 1 and 125th day, you will be totally transformed. कई लोग तो सोचता है कि यूपीएससी देने से क्या फायदा है, लाइफ ही न जी ले. वो गलत है, वो गलत है. गोल से नहीं हटना है. चलो, तो किसको ज्योग्राफी लेना चाहिए बताओ? पॉजिटिव लोगों को, जिसका कीन इंटरेस्ट हो, जो बहुत कीन ऑब्जर्वर हो, जो रोड पे जा रहा हो तो उसको ये भी समझ लगे ऐसा देखे यार रोड टेढ़ा क्यों है, सीधा होना चाहिए था. ये इस टाइप का इंसान ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ता है. इज इट क्लियर टू द क्लास? हाँ. और ये मत सोचना आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग ज्योग्राफी, आई एम स्टिल ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी. आई टीच ज्योग्राफी बिकॉज इट हैज टू बी माई प्रोफेशन. लेकिन मैंने जो सीखा ज्योग्राफी, दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ मन में कुछ. ज्योग्राफी वास्ट है. दूसरा क्या था? ज्योग्राफी क्यों ले, कौन लेना चाहिए. अच्छा, एक और रह गया ना पॉइंट, रोल इन जीएस एंड रोल इन सिविल सर्विसेज एंड हाउ मच मार्क्स यू विल बी गेटिंग. How much marks you will be getting is your ability. That's not my ability. I am telling you honestly what is role of a teacher. एक टीचर का रोल क्या होता है पता है तुमको? मान लो कि खाना है, दाल फ्राई बना रहे हो, उसमें दाल, टमाटर, अनियन, मसाला सब तुम हो. हम सिर्फ पानी है, वाटर. मतलब समझा? मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, लेकिन मैं अपने में कुछ नहीं हूं. कितना लोग समझा? ये मैंने जिंदगी में पहली बार अचानक एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन यही रियलिटी है. कई बार मैं बैठ के सोचता हूं यार रिजल्ट आया, उसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ. वो फोन किया, वो तो रो रहा था, वो मेरे पास भाग के आया सर की मैंने. एंड आई फील सो हेल्पलेस. कोई पैर छू के प्रणाम करता है, कोई बैच ऑफ होने पे हक करके रोने लगता है. एंड आई फील सो हेल्पलेस एज ए टीचर. मैं कुछ नहीं कर पाता तुम्हारे लिए. समझ में आया? और मेरे ब्लेसिंग से भी कुछ नहीं होता है. ये सब मैंने करके देख लिया है. जहां वक्त तुझे मैं आशीर्वाद देता होगी तो रैंक 1 आएगा, नहीं आया. क्यों? क्योंकि I will be like a cloud raining in the class and it will depend upon your fertility. समझे? हम क्या हैं? न्यूट्रल हैं. पहले ब्लेम मत करना आईएएस बनने के बाद. हम पहले ही बता रहे हैं कि हम तुमको आईएएस नहीं बना पाएंगे. आईएएस कौन बनाएगा तुमको? तुम. लेकिन मेरे बिना भी नहीं बन सकते हो. ये भी सच है. चाहे अपनी बात नहीं कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टीचर्स, ऑल द टीचिंग कम्युनिटी. दैट इज व्हाट इज देयर रोल. सो व्हेन आई रेन, इफ यू आर ए डेजर्ट, मतलब नॉट यू, इफ मान लो ये डेजर्ट है तो मेरा क्या हाल होगा बताओ इस पे? रेन ड्रॉप फॉलिंग इन ए डेजर्ट, व्हाट इज द आउटकम? कुछ होगा क्या? आई विल बिकम वेपर एंड कोई रिजल्ट नहीं होगा. अच्छा चलो, एक्सेसिव रेनफॉल इन ए डेजर्ट. पहले से कुछ पढ़ा नहीं है, इधर आके बैठ गया वो डेजर्ट कि मुझे आईएएस बनना है. पहले से कुछ नहीं पता उसको, ज्योग्राफी नहीं, कुछ भी नहीं, वो अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ा. ऑल ही कैन डू, ही कैन ओनली राइट. बस इतना पढ़ा अपने जिंदगी में. नाउ ही इज ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज. वो पढ़ना शुरू किया. मान लो कि ऐसा कोई है जो बिल्कुल ही इनफर्टाइल कैरेक्टर है, तो हम क्या करेंगे? आई विल ओवर पोर ऑन हिम. इट विल कॉज ओनली फ्लैश फ्लड्स. हाँ या नहीं?
जो उसका बालू है वो भी चला जाएगा बेचारा, नीचे से उसका सारा स्केलेटन ऐसे बाहर आ जाएगा, समझा? इसीलिए जो सैंड है, जो डेजर्ट है, वहां पर आई मस्ट रेन ब्रीफली ऑल एवरी टाइम, 5-6 ईयर्स में वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? सॉइल में, देन ही विल बी वेरी फर्टाइल। कुछ मीनिंग समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? मतलब आई एम देखो, जैसे वन एग्जांपल इज फॉर राजस्थान, द इंदिरा गांधी कैनाल वाज ब्रॉट इन राजस्थान and the desert has become field of green revolution or not. So all I am saying that even if you are a desert, you will take longer time, but you need sprinkles of water, not the outpouring of knowledge. तो जो लोग वीक बैकग्राउंड से आते हैं, दे शुड नॉट स्टार्ट रीडिंग 14 आवर्स ए डे, 5 आवर्स हिस्ट्री, 3 आवर्स ये, 4 आवर्स ये, क्या होगा तुम्हारा उसमें? फ्लैश फ्लड्स। गिव योरसेल्फ टाइम, पीसफुली थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करो, एंड द सैंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉइल। दिस इज अबाउट द टीचर्स रोल, दिस इज माय रोल। तुम आईएएस बनोगे, आई विल क्लेम नथिंग। मेरा कम से कम 1000-1200 आईएएस तो होगा जो हमसे पढ़ा होगा, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। 4-5 हजार पीसीएस में होगा, लेकिन मैंने कभी किसी को फूल देना, फोटो खिंचवाना, क्रेडिट लेना नहीं किया। आई जस्ट टाउट, देन आई वैनिस्ड। आई विल टीच योर बैच। तुम आईएएस बन जाओगे, तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार होगा, तुम आओगे, हम भी एक अच्छा सा हक देंगे, बट आई विल टेक नो क्रेडिट। वो सब तुम्हारा है, समझा क्या? चलो कुछ काम की बात करते हैं। और कोई क्वेश्चन हो मन में तो बताओ। Who should take geography? One is who exciting about life. समझा? बस इतना ही फंडा है मेरा। आईएएस कौन बनाएगा तुमको? तुम खुद बनोगे, लेकिन मेरे बिना नहीं बनोगे। वो दाल फ्राई का एग्जाम्पल याद रखना बस। पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। तुम्हारे सारे नॉलेज को, तुम्हारे बुक्स को, तुम्हारे मटेरियल को कौन एसिमुलेट करेगा? पानी करेगा ना। So that is the role of a guru. That is the role of a teacher. All right? Okay. सिलेबस वास्ट है? नहीं है। फिर जीएस में क्या रोल है बताओ? अच्छा, आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट माई क्लासेस। आई विल बी टीचिंग यू फॉर 1000 मार्क्स इन मेंस। कितना? 1000 मार्क्स। यही ज्योग्राफी का रियल मैजिक है कि don't consider geography as 500 marks optional. एक एग्जाम्पल लेते हैं। से यू हैव टेकन सम लिटरेचर पेपर और सम अदर पेपर, XYZ पेपर। कोई इतना वास्टली नहीं है जितना ज्योग्राफी है चारों तरफ फैला हुआ। पेपर 1, पेपर 2 जियोपॉलिटिक्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 2 में भी है ना बहुत सारा टॉपिक्स है। पेपर 3 पूरा इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, है ना, सब पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब वहीं पे आता है। नेचर ऑफ द क्वेश्चन भी देख सकते हो। दे हैव आस्क्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाया जाता है, शायद मैंने पहले भी कहा होगा। एक और आया था मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट। तो मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट इज नॉट टॉट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, it is purely geography. So even if you look at the paper 3 question papers, you will find that lot of geography is there. What about PT ban? बताओ। मैंने 15 को ही प्रेडिक्ट किया था। 15th का जो वर्कशॉप था, and for last 1.5 year in next IAS GS batches, I have been telling everyone कि those who command geography, environment and science as a whole, they will always qualify PT, and this has come true this year also. हाँ या नहीं? हाँ। Again you have around, मैंने तो एक वीडियो डाला अपने YouTube पे, and I have captured around 42-45 questions. हालांकि उसमें मैं इंसोलेशन और 1-2 क्वेश्चन मिस कर गया। Still 45 questions ज्योग्राफी से है। You call it geography, environment
and a bit of science. But overall, a geography optional student shall be able to hit 42, 43 questions. Attempt तो आसानी से करेगा, उसमें he can get 35 correct. नहीं, and 35 is a very good number because you are getting 35 out of 42. अब बाकी कितना रह गया? Another 60 question, 58 questions. And from rest 58 questions, even if you get 15, हो गया? हुआ ना? कितने लोगों ने देखा इस साल का पीटी का क्वेश्चन पेपर देखा? कौन देखा? आप लोगों ने, किसी ने नहीं देखा? देखा? कितना क्वेश्चन था ज्योग्राफी से? हाँ, ज्योग्राफी एनवायरमेंट सब मिला करके देखो क्या है ना, साइंस वाले से हमारा बड़ा कंट्रोवर्सी चलता है. अब आया है पी वेव एस वेव का बिहेवियर, आया है ना, लेकिन उसके पहले वाले पॉइंट में सिस्मोग्राफ लिखा है. तो ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है साइंस का? ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है भाई. मेरे जीएस के नोट्स में देख लो ना, पीएनएस का कंपैरिजन लिखाया है कि नहीं लिखाया है? किसको याद है लिखवाया है? आया ना, वही एग्जैक्ट वही आया, पैरेलल और परपेंडिकुलर, यही लिखाया था. एक लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरा ट्रांसवर्स वेव है, वैसे ही लिखवाया था. साइंस वाले ऐसा वेव पढ़ाते हैं क्या? जनरल साइंस वाले क्लेम कर दिए, ले लिए अपनी तरफ, तो क्या करें? ये सही नहीं है. वो टिपिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि सिस्मोग्राफ पे लिखा हुआ है ना, तो सिस्मिसिटी तो साइंस का विषय है नहीं. तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन रहता है जो कि जैसे इंसोलेशन. अब इंसोलेशन में इंफ्रारेड और ये रेड पे पूछा हुआ है, तो साइंस के टीचर लोग उस पर क्लेम करने लगते हैं. दैट्स नॉट ट्रू. इंसोलेशन कहां पढ़ाया जाता है? दिस टर्म इज नॉट यूज्ड इन साइंस, दिस टर्म इज यूज्ड इन, एंड देन दिस क्वेश्चन हैज इंटेल्ड इंफ्रारेड वर्सेस वाटर वेपर. तो मेरा ऑप्शनल का पेपर उठा करके देखो, उसमें मैंने सन से इंसोलेशन के सारे स्पेक्ट्रम के वेव पढ़ाए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ मैंने पढ़ाया हुआ है. ऑप्शनल में पढ़ाया हुआ है, या जीएस में ही पढ़ाया था 1 year बैक. स्पेक्ट्रम ऑफ रेज पढ़ाया हुआ था, जीएस में ही पढ़ाया हुआ था. देख लो जाकर के, वो टिपिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन है. बट सम पीपल विल कंसीडर इट एज साइंस, एंड बट एज ए ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट वी हैव एवरी रीजन टू बिलीव दैट दे आर कंप्लीटली ज्योग्राफिकल. वो ज्योग्राफी से ही सॉल्व होगा. ऐसे ही था लास्ट ईयर, देयर वाज ए क्वेश्चन ऑन लॉ ऑफ द सी, देयर वाज ए क्वेश्चन ऑन जियोमैग्नेटिज्म. तो लॉ ऑफ द सी को ले लिया गया आईआर में. गलत बात है यार, ये नहीं है लॉ. वो लॉ ऑफ द सी ओशनोग्राफी का पार्ट है, लॉ ऑफ द सी. और ये क्या है? जियोमैग्नेटिज्म, वो जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है. साइंस में कहां आता है जियोमैग्नेटिज्म, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल, ये सब. तो एक्चुअली क्या है ना कि ज्योग्राफी हैज सो मेनी ओवरलैप्स विद साइंस, इन्वायरमेंट. देयर वाज ए वेरी यूनिक क्वेश्चन दिस ईयर. इन्वायरमेंट के वाले लोग और हम लोग सब आपस में कंट्रोवर्सी होता है, कैसे बताते हैं. देयर वाज ए क्वेश्चन ऑन सॉइल. सॉइल पेडोजेनेसिस समझते हो? पेड मीनिंग सॉइल, पेडोजेनेसिस सॉइल फॉर्मेशन. तो पेडोजेनेसिस में आई हैड टॉट द रोल ऑफ बैक्टीरिया. देयर वर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सॉइल दिस ईयर. लेकिन एक में पूछ दिया कि सब जीरो कंडीशन में बैक्टीरिया सरवाइव करेगा. सब जीरो कंडीशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो यस करेगा. वो सॉइल पढ़ाया मैंने कि पोर्टजोल सॉइल कैसे बनता है. तो पोर्टजोल सॉइल, परमाफ्रॉस्ट रीजन, वहां जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है दैट इज फाउंड इवन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. तो स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी कैन इजिली डू इट. इक्वेटर पे क्या है? अब देखो, जियोलॉजी पढ़ाया, अंडरस्टैंड जियोलॉजी. आई वॉज टीचिंग अर्थ इंटीरियर. So, as an evidence of Earth's interior, I had made a point, I remember. The point was that anaerobic bacteria is also found at the depth of 32 kilometers. So, at the 32 kilometer के depth पे, what is the temperature? 100 degree. नहीं? So, this is how geography helps you. इसलिए
once you have a complete good knowledge of geomorphology, climatology, soil geography, environmental geography, और क्या था, oceanography, then this whole becomes a package of general science as well. नहीं, ये पूरे जनरल साइंस का एक पैकेज मिल जाता है. मान लो हम पढ़ा रहे हैं विंड सिस्टम, तो ऑब्वियसली आई हैव टू टीच द ऑल द लॉज रिलेटेड टू प्रेशर, गैस लॉज, कोरियोलिस फोर्स पढ़ना पड़ेगा ना. तो इवेंचुअली यू कीप लर्निंग, थंब रूल्स, ये सब पढ़ाना पड़ता है. तो इवेंचुअली यू लर्न बेसिक साइंस ऑल्सो. So this is what is about the role of geography. और कोई क्वेश्चन हो जल्दी बताओ. तुम्हारा तो नहीं है मुझे पता है. You are very consistent. कोई क्वेश्चन है ज्योग्राफी से कि सर लूं या नहीं लूं? क्लास के बाहर ऐसा कुछ पूछने वाले हो? नहीं ना? ओके. Now something important. To get very good marks in geography mains, there has to be a very important strategy. Geography meaning geo plus graphics. So any answer must include some kind of graphical presentation, then you will get marks. समझा? आजकल लोग ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, ये सच है. कुछ लोग नहीं ला पा रहे हैं कितना जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं. जैसे पहले मार्क्स आता था 360, 336, 340 out of 500, और out of 600 marks used to be 360 to 428. बहुत मार्क्स आता था. अब इसका रीजन क्या है कि ज्योग्राफी में दो बहुत मेजर सेटबैक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. पहला कि ज्योग्राफी को लोगों ने करंट अफेयर से जोड़ दिया बहुत ज़्यादा, और जो हार्ड कोर ट्रेडिशनल ज्योग्राफी है वो नो वन इज ट्राइंग टू लर्न. एंड व्हाट इज हैपनिंग दैट मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड द न्यू कमर्स एंड स्टूडेंट्स लाइक यू, दे आर ऑल रैलिंग बिहाइंड करंट अफेयर्स. करंट में क्या है, करंट में क्या है. आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. Say there was a question on a smart city. So there was a noise all around. This 3 years back, I was not teaching. मैंने 5 साल पढ़ाना बंद कर दिया बीच में. कई बार हम बोल चुके हैं इस पे. मैंने 5 साल नहीं पढ़ाया तो ज्योग्राफी डूब गया. डूब नहीं गया मतलब वो मैजिक नहीं रहा. और तुम देखना, नोट कर लो कॉपी में, 1 साल के बाद अभी हमारे जो वॉरियर्स हैं वो पहला पीटी दिए हैं. पहला पीटी, समझा? क्योंकि 2 ही बैच तो पढ़ाया, 3 ही बैच तो पढ़ाया है, अभी 1.5 साल तो हुआ है. लेकिन आफ्टर अनदर 2 years मुझे लगता है कि 2 साल और टाइम देंगे उनको हम. रिजल्ट टॉप 10 में वैसे ही बूम करेगा जैसे 2007 से 15 तक करता था. लास्ट वॉज जुनैद, 3rd रैंक. उसका भेजा हुआ कोई स्टूडेंट भी था पिछले वर्कशॉप में. तो ये क्यों ऐसा हुआ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे सुनो बहुत ध्यान से. ज्योग्राफी इज ए हाईली इवॉल्व्ड साइंस, एंड दिस साइंस हैज इवॉल्व्ड थ्रू generations and generations of research work. And every question which is asked in civil services must not be treated as GS type. Even if there is a question on a smart city, you have to write on the
urban morphology models, and we already have, geographers have created such models of a smart city. जैसे चंडीगढ़ देखे हो, चंडीगढ़ ली कार्बूजियर का मॉडल है वो, समझा? चंडीगढ़ इज ए स्मार्ट सिटी ऑलरेडी. भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इज एन स्मार्ट सिटी, प्लान सिटी है. ल्यूटेंस दिल्ली, दिल्ली जो है न्यू दिल्ली जिसको कहते हो, ये सब पहले से ही स्मार्ट सिटीज है. द स्मार्ट सिटी फॉर अदर पीपल was current affair, but for us we already had so many models on smart cities. So when this question appeared in civil services, everyone was writing on नीति आयोग and smart city में क्या क्या होता है, communication, road ऐसा, तो नंबर नहीं आएगा. समझा क्या? क्योंकि ज्योग्राफी में मॉडल्स लिखना होगा. And we already had urban morphological model. Now, ये बताओ, think of it, be part of this class. बाहर मत सोचो. मान लो जेएनयू का प्रोफेसर है, आपका कॉपी कौन चेक करेगा? आप जब लिखोगे आंसर मेंस में, करेक्शन कौन करेगा? प्रोफेसर्स करेंगे ना. तो प्रोफेसर्स करंट अफेयर पढ़ते हैं क्या? मैं ऑप्शनल की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीएस, थिंक ऑफ इट. ये प्रोफेसर्स करंट पढ़ते हैं क्या? करंट में क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिकल न्यूज. समझा? कुछ लोग राहुल को गाली देगा, कुछ लोग मोदी जी को गाली देगा, ऐसे डिवीजन चलेगा. तो ये जो प्रोफेसर्स हैं, दे हैव फुल आइडिया ऑफ ट्रेडिशनल ज्योग्राफी, and that is what they have been doing since the day they joined their profession. समझा? तो when you write your geography, वो ट्रेडिशनल चीजें आनी चाहिए. So what is a smart city? Already it has been defined by Lee Corbusier. तो you have to start writing with the क्या, जो डेवलप्ड ज्योग्राफी है, ऑलरेडी इवॉल्व ज्योग्राफी है, वहां से शुरू करो. शुरू मत करो नीति आयोग से. प्रोफेसर क्या ढूंढ रहा है उसमें, ये ली कार्बूजियर पता है कि नहीं इसको? तो ये गलत हुआ. अभी तुम बाहर जाओगे ना, एवरीवन इज टेलिंग एवरीवन कि भाई ओ पेपर 2 इज कंप्लीटली ट्रेडिशनल, सॉरी कंप्लीटली क्या, करंट. ज्योग्राफी में करंट अफेयर आता है, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आता है. इतना हल्ला चल रहा है बाहर में, तो ये सही नहीं है. क्वेश्चन पेपर लेके डिस्कस करेंगे. वंस द बैचेस बिगिन आई विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस. लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, देखो 80% was traditional geography and only 20% was current affair. So after writing Corbusier, the rectangular model of, rectangular model है स्मार्ट सिटी का, रेडियल मॉडल है. रेडियल मतलब देयर इज ए सेंटर. सीपी देखे हो ना, तो सीपी एक सेंटर है एंड रोड्स आर रेडिएटिंग इन ऑल द डायरेक्शन, है ना. सो ऑल द मेजर रोड्स आर कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट. दैट्स वन मॉडल ऑफ ए स्मार्ट सिटी. देयर आर सर्कुलर मॉडल, सो 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, आउटर रिंग, इनर रिंग. नहीं, एक होता है कंपोजिट सिटी मॉडल, जो सारे मॉडल को क्लब कर दिया. तो स्मार्ट सिटी है सिविल मॉडल्स. रेक्टेंगुलर मॉडल उसको कहते हैं आयरन ग्रिड पैटर्न, ग्रिड आयरन पैटर्न. जैसे चंडीगढ़, चंडीगढ़ आप देखे हो, चंडीगढ़ में देयर इज ए रोड अनदर क्रॉसिंग इट एट राइट एंगल, है ना. सब रेक्टेंगुलर है, सारा रोड ही रेक्टेंगल बना हुआ है. दैट इज अनदर स्मार्ट सिटी मॉडल. अरे भाई तुम नीति आयोग क्यों लिख रहे हो यार? यहां स्मार्ट सिटी पे 5-5 मॉडल पढ़ाया हुआ है नोट्स में, तुम क्या लिख के आ रहे हो? हाँ, यस, वंस यू हैव रिटन अबाउट दिस मॉडल्स एंड देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, जैसे प्लीज बी विथ मी, ऑल द रोड्स आर कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट, सो द सेंट्रल कोर ऑफ द सिटी विल हैव कंजेशन प्रॉब्लम्स और नॉट? होगा ना, हाँ या नहीं? रेक्टेंगुलर में क्या प्रॉब्लम है? रेक्टेंगुलर रोड्स ऐसे है तो डिस्टेंसेस विल बी टू लॉन्ग, हाँ या नहीं? तो
सब एक में एडवांटेज है, दूसरे में भी एडवांटेज है, तीसरे में भी कोई और डिसएडवांटेज है, कहीं और एडवांटेज है. सो एवरी मॉडल हैज टू बी seen with merit and demerit perspective. So once you have this kind of analytical learning, तुमने इसको समझ लिया है, now you are reading newspaper, smart city, मोदी जी लाए हैं भाई, देखा जाए. अब देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस का लेवल कहां होगा, क्योंकि तुमने कोर पार्ट समझा हुआ है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. जैसे देखो, देयर वाज ए क्वेश्चन ऑन पोलर वोर्टेक्स और एक करंट अफेयर. व्हाट द हेल, पोलर वोर्टेक्स इज नथिंग बट जेट स्ट्रीम. तो बेसिक क्या है, जेट स्ट्रीम. फर्स्ट लर्न जेट स्ट्रीम, समझा. एंड जेट स्ट्रीम का वो मेंडरिंग कैसे है, तो वोर्टेक्स कैसे बनता है, तो उसमें ऊपर में एंटी साइक्लोन कैसे बनता है, जेट में साइक्लोनिक फॉर्मेशंस क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा दिया. लेकिन क्वेश्चन आया पोलर वोर्टेक्स पे, एवरीवन इज सेइंग करंट अफेयर, व्हाट द हेल. अरे करंट अफेयर कहां है भाई. So this was the real problem. The 5 years a student have struggled to identify between what was current affair and what was the core geography. तुम लोग को ऐसा नहीं करना है. समझ में आया क्या पढ़ना है, core plus current affair. This is how I have started giving 2 booklets. One booklet will be on core, another booklet will be on current affair. मेरे हर बैच में करंट अफेयर का बुकलेट अलग है और कोर का अलग है. समझ में आया. आई हैव मेड 2 पॉइंट्स बाय फार. वन इज यू वांट टू स्कोर ग्राफिक्स, मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना होगा, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब ही है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एनी फेनोमेना विच ऑकर्स ऑन द अर्थ. धरती के ऊपर कोई भी परिघटना घट रही है वो सब ज्योग्राफी हो जाता है. नक्सलिज्म ज्योग्राफी है या नहीं, कैसे है मैं बताता हूं. व्हाई नक्सल्स आर फाउंड इन ए यूनिक प्लेट्यू रीजन डेंसली फॉरेस्टेड, बताओ. नक्सलिज्म हैज एनी कनेक्शन विद ज्योग्राफी और नॉट. यस, बिना ज्योग्राफी के तुम नक्सलिज्म कैसे समझोगे. बताओ. टेररिज्म हैज कनेक्शन विथ टेरेन और नॉट. टेरेन मीनिंग वही लैंडस्केप. तुम बताओ. सीजन्स हैव कनेक्शन विथ टेररिस्ट अटैक्स और नॉट. यस. मैंने पहला लाइन क्या बोला, ज्योग्राफी तुमको एक बड़ा ही इंटेलिजेंट आदमी बना सकता है, क्यूरियस बना सकता है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है, दिमाग घुमा सकता है. जीएस में उतना नहीं होता है, बट ऑप्शनल में होने लगता है, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम. तो भाई याद रखो कि इवन इफ यू आर राइटिंग नक्सलिज्म इन ज्योग्राफी, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टिल ड्रॉ ए मैप, show the plateau regions and show how the red corridor has connection with geography. Even if you are writing a question on terrorism, still you have to draw the lines. समझा. बाउंड्रीज तुमको दिखाना होगा. तो ज्योग्राफी में कैसा भी सब्जेक्ट हो, कैसा भी टॉपिक हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आएगा. आई एम टेकिंग वन टॉपिक वेरी वेग, कर ले अर्बन प्रॉब्लम्स. क्या डायग्राम बनेगा. स्टिल यू कैन क्रिएट ए व्हील डायग्राम. अर्बन प्रॉब्लम्स को सेंटर में रखो, ड्रॉ सम रेडिएटिंग लाइंस एंड राइट द प्रॉब्लम्स. क्लासिफाई कर दो. नहीं, अर्बन प्रॉब्लम में क्या हो सकता है, ए रिलेटेड टू द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ रोड वोड. नहीं, तो अब उसमें भी होगा, तो you can draw, keep drawing radiating lines. So there is a wheel diagram emerging, and wheel diagram is a very important tool for geographers. So I will be teaching you all this diagram making, all मैं खुद ही डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको सिखा दूंगा. ठीक है ना. ये मेरा ड्यूटी है, आपका ड्यूटी नहीं है. आपको कभी नहीं कहा जाएगा कि जाके पढ़ लो, नहीं, क्लास में पढ़ो. And I am promising you again, every topic in the class will be taught with A, explaining it, and B, you have to prepare notes in the class itself.
आई विल गिव यू 100% डिक्टेशंस, समझा? मान लो कि टॉपिक है से सॉइल, तो सॉइल क्या है समझा दिया, लेकिन लिखना कहाँ है? क्लास में. सो बी प्रिपेयर्ड दैट यू हैव टू राइट full-fledged notes in the class itself. I am not someone who will give you booklet कि मैं समझा दिया, बुकलेट पढ़ लेना बेटा. मुझे पता है, मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर में, क्योंकि when you write, I'm an old school, मुझे पुराना स्कूल पे ज्यादा भरोसा है. When you write, it becomes all yours, सब तुम्हारा. When you write in own handwriting, you are going to memorize it more easily. When every topic of geography is written in class notes, you are happier forever. It's like possession. You are possessing some wealth. That's your wealth. And you will have that sense of completeness. और क्लास के बाद अगर देखोगे ना कि आज 3 टॉपिक पढ़ाया, 2 टॉपिक पढ़ाया, समझा दिया, समझ तो लिया, और यहां से बाहर निकल के बाजीराम के पास गए, बैच छूटा वहां भी, और वहां से नर या मादा निकले बाहर, तुम देखे बस सारा धीरे धीरे गायब. तुम्हारी उम्र में ये सब होता है नहीं, किसी भी उम्र में होता है, लेकिन तुम्हारी उम्र में ज्यादा होता है. क्यों? अभी तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंस का टाइम चल रहा है. एट द एज ऑफ 21 to 25 द नेशन वांट्स यू टू स्टडी. बताओ, खेलने कूदने के टाइम में. आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. पता है तुम्हारा सब जो साइकोलॉजिकली होगा वो मुझे सब पता है. आई हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस. इसलिए लिखना बहुत जरूरी है. एनीवन हु इज एवर्स टू द आइडिया ऑफ राइटिंग इन द क्लास मस्ट नॉट टेक एडमिशन. इफ एनीवन हैज एनी एवर्स आइडिया अबाउट राइटिंग इन द क्लास, डोंट टेक एडमिशन. दूसरा क्या है एडवांटेज, क्या है कि एट द लास्ट मोमेंट, मान लो कि यू हैड जीएस 2 days गैप, नेक्स्ट डे क्या है योर ऑप्शनल. 2 days गैप, क्या करोगे? बुक्स उठाओगे? तो नोट्स है ना मेरा, नोट्स को बस गो थ्रू करो. अनदर एडवांटेज विल बी, इवन इफ यू आर रीडिंग माई बुकलेट और एनी गुड बुक विच यू वांट टू रीड, तो वट एवर गुड पॉइंट यू आर गेटिंग और एनीथिंग फ्रॉम द न्यूज पेपर यू वांट टू कट पेस्ट, डू इट ऑन योर नोट्स. Keep enriching your notes. Class notes को enrich कर दो. So that's your full and final notes. समझ में आया? तो नंबर आएगा. ज्योग्राफी का स्ट्राइक रेट जो पीटी में है ना, वो बायजूस के वेबसाइट पे शो किया हुआ है. मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां पे स्ट्राइक रेट शो किया हुआ है. यूपीएससी के वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है. जितना लोग ज्योग्राफी लेता है उसमें से अगर 4 लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल लेता है तो 1 इज क्वालिफाइंग इन पीटी. दिस इज स्ट्राइक रेट. मैंने बताया था पहले भी. किसको पता था ये? हाँ, उसका एक का निकलता है. और मान लो तुमने कोई और सब्जेक्ट लिया है, कोई एक सब्जेक्ट का नाम लो तुम, सोशियोलॉजी. राय साहब बड़े अच्छे आदमी हैं यार. तुम तो ऐसा ले लिए कि कुछ ले लेते मैथ्स वैस, तो चलो सोशियोलॉजी ले लिया इसने. नहीं सोशियोलॉजी लेंगे. तो ये सोशियोलॉजी में जो स्ट्राइक रेट है ना, वो 10 में 1 है. जाके चेक करना, फिर मुझे बोलना कि गलत बोल रहा था. ये बताओ, अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तो ये मेरे लिए बूमरैंग करेगा ना. यू विल लूज ट्रस्ट यार कि अरे आदमी झूठ बोल रहा था ये. तो भाई साहब ट्रस्ट करो पहले कि ये स्ट्राइक रेट है. एक पॉलिटिकल साइंस भी बड़ा फेमस सा सब्जेक्ट है, उसमें भी वही है लगभग 1 out of 10. और ज्योग्राफी में इतना स्ट्राइक रेट है पीटी में. अब सुनो, डरो, जो बताने जा रहे हैं उससे थोड़ा डरो. 2005
UPSC declared 261 seats. That was the total number of seat declared. कितना? 261 seats. The number of people to be qualified in PT was hardly 4,000 to 5,000. समझा? वो हमारा टाइम था. दया की तरफ मत देखो, अच्छा हुआ नहीं हुआ. अब ये सुनो, 2010 number of seats 1400. People to be qualified in PT 15,000. Number of people attempting, number of aspirant का numbers बता रहा हूं. 2005 60,000. पूरे देश में कितने लोग आईएएस देते थे? 60,000 in 2005. 2010 number of people appearing in PT aspirants 1 lakh. तो 60,000 में 5,000 रिजल्ट आना है. प्लीज देखो, 60,000 में 5,000 रिजल्ट आना है. 2010 में 1 लाख में 15,000 आया है. तो गोल्डन टाइम कब था? 2010. वो गोल्डन टाइम था. नाउ व्हाट यू हैव टुडे? 2023. नंबर ऑफ पीपल अपीयरिंग 15 lakhs. 15 लाख. अरे 10-12 लाख तो इस बार फॉर्म भरा है. कितना भरा है? मैंने तुम्हारा टाइम कैलकुलेट कर लिया है. 10 लाख प्लस कितना? 13 lakhs. 13 lakhs people have appeared in PT this year. फॉर्म भरा था. 13 लाख आदमी. नंबर ऑफ PT रिजल्ट्स 10,000. समझा? कंपेयर विथ 2015. तुम्हारा टाइम खराब नहीं बोलूंगा, ज्यादा चैलेंजिंग है. ये बता रहा हूं कि नंबर ऑफ पीटी पीपल क्वालिफाइंग पीटी ड्रास्टिकली घटा. 10,000 12,000 पे आ जाएगा. और नंबर ऑफ अपीयरेंसेस और 15 टाइम्स मल्टीप्लाइड. पीटी तो पीटी हैज बिकम द बिगेस्ट बैरियर और नॉट? तुम्हारी सारी हिम्मत, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारे सारे होप्स, डिजायर, वीम्स, फैंसीज सब पीटी शैटर्ड कर देता है. जब रिजल्ट आता है ना, तो एट ए टाइम देयर आर 14 lakhs पीपल हु आर गोइंग टू कोलैप्स. डरो पीटी से, मैं बता रहा हूं. इसका सॉल्यूशन क्या है? ज्योग्राफी ले लो. क्या स्ट्राइक रेट है यार. अब देखो, हम तो उनसे बात कर रहे हैं ना जो ज्योग्राफी लिए हुए हैं. हम कोई ऑडिटोरियम में तो बोल नहीं रहे हैं. तो आपसे बोलने का तो मेरा हक है. और आपने डिसाइड किया ज्योग्राफी, तो यू शुड नो कि ज्योग्राफी लेने का फायदा क्या है मुझे. तुम देखना तुम्हारा कैसे ब्लेसिंग्स बन के आएगा कि मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया था, अच्छा किया था यार, पीटी तो हो गया. एक डेटा है यूपीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल डेटा है कि नंबर ऑफ पीपल क्वालिफाइंग विथ पीटी ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले इज अराउंड 2,500 to 3,000. इतना लोग ज्योग्राफी से मेंस लिखता है ना. क्यों लिखता है? क्योंकि ज्योग्राफी ज्यादा लोग ऑप्शनल ले रहा है क्या? नहीं, ज्योग्राफी कोई लेता ही नहीं है. देखो, सब लोग क्या लेता है? हाँ, एंथ्रो, PSIR, सोशियोलॉजी, क्योंकि उनके परसेप्शन में है कि ये थोड़ा इजी है. तो 1-1 लाख लोग लेते हैं ऑप्शनल, और उनका 1,000 लड़का क्वालिफाई नहीं कर रहा है. ज्योग्राफी में 20,000 लोग ऑप्शनल लेता है और 3,000 क्वालिफाई करता है. समझे आप? इसलिए मेंस में जाकर क्या हो जाता है? घमासान टक्कर. अब आओ, मूल बात पे आओ. सो हाउ मेनी पीपल आर राइटिंग मेंस विद ज्योग्राफी? अराउंड 2,500. समझा? 2,500 लोग मेंस लिख रहा है. So this number 2,500 is because of number of people taking geography are more, or number of people qualifying are more.
Number of people qualifying are more. Number of taking geography is very less. तुम पूरे दिल्ली का सारा टोटल कर लोगे ना, तब भी ज्योग्राफी पढ़ने वालों का पर ईयर 3000 नंबर्स भी नहीं है. समझा? 3000 में नहीं. इतना तो कुछ लोग PSIR क्या सब होता है सब्जेक्ट, उसमें एक ही बैच में पढ़ा दे रहे हैं. हाँ, उतना तो ऑनलाइन में चला जा रहा है. क्या है वो फिजिक्स वाला खान सर, बहुत सारा चीज आ गया ना अब तो. यूपीएससी में लिखा रहता है 1,99,000 फी कट अवेलेबल इन 299. गजब का चल रहा है सेल भाई. तो ये हमारे प्रोफेशन में बहुत सारा चीज हो गया कोरोना के बाद. एक से एक हीरो आ गए. मुझे तो मन कर रहा था रिटायर कर जाऊं क्या, बट when I saw my optional batch, booming in the class, then I thought, no, that online drama is a different thing, social media is a different thing, and the real classroom connection is a very different thing. So that era has not ended. But yes, it has invited 15 lakh people for, so everyone is practicing these days कि IAS तो देना ही है. नहीं, बस मैं बताता हूँ, the real competition is among 20,000 people. 20-25,000 में ही रियल कंपटीशन होता है. रेस्ट ऑफ इट इज क्राउड. रेस्ट ऑफ इट वही है, फिजिक्स वाला, मैथ्स वाला, क्या क्या सब, खान सर. अरे रिकॉर्डिंग में तो नहीं जा रहा है. जाने दो ना, फिर क्या है. दे आर ऑल माई वेरी गुड फ्रेंड्स. Yeah, they come to meet me. They make. खान सर से तो आए थे हमसे मिलने, तो ठीक है, कोई बात नहीं. They are all very generous and good person. सब सोच रहे हैं कि कवर अप कर रहे हैं ना. ऐसा नहीं है. मतलब आई हैव मेट खान सर एंड ही इज जेन्युइनली गुड. इंसान का एक होता है ना, ठीक है, अच्छा. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट नॉलेज विच यू पोजेस. Sometimes it's about your efforts also. And we all know that not everyone is going to be an IAS, but if we can impart knowledge in a small fee to every Indian, that's great. नहीं, तो it's about imparting knowledge, enthusing people. Main क्या होता है? जोश भरना. बाजीराव क्यों जीत जाता था बताओ? बाजीराव, इनविंसिबल वॉरियर, जोश भर देता था वो. खड़ा है, लोग उसका भाई रे, अपने सिपाही जगह गला मिलना, उसको पैट करना, उससे बात करना, ऐसा कमांडर था ना वो. तो ये तो बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आईएएस नहीं बना सकते यार. आईएएस बनना इज ए वेरी डिफरेंट बॉल गेम. यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन द क्लास. दैट्स वन क्राइटेरिया. You have to work equally hard at your place of residence, and this process must go on for 4 to 5 years. समझे? या 5 ज्यादा बोल दिया क्या? कम बोला है. Keep in your mind, you have to be in Delhi for the minimum of 3 to 5 years. देखो, you cannot count exceptions कि रैंक 5 पहली बार में हो गया. ये भी तो देखो, रैंक 1 2017-16 से लेकर के अभी जाके हुआ. काउंट करो कितना साल? 7 साल. एयरफोर्स में उसके फादर हैं, वो नोएडा में हमारे जीजा श्री के पड़ोसी हैं. आई कम टू नो अबाउट हर थ्रू. जीजा श्री समझते हो ना, कजन के हस्बैंड, वो भी एयरफोर्स में बड़े पद पे थे. देखो, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट, कहाँ मैं भटक गया, क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, आई वॉज थिंकिंग कि हाउ टू डील विथ योर ज्योग्राफी. नहीं, चलो टेल मी, रिस्पॉन्ड टू इट. ज्योग्राफी में स्कोर करने के लिए करंट अफेयर बहुत पढ़ना पड़ेगा. इज इट ट्रू? नॉट एट ऑल.
अच्छा, if you are going to share this idea with other people outside, everyone is going to abuse me. शेयर मत करना किसी से, ऐसा बोला, बोलेगा अरे कुछ नहीं ये वो. Current affair has very limited role in geography optional, and I'm telling you, it's like pouring on the cake. लेकिन केक क्या है तुम्हारा? कोर ज्योग्राफी, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी इज द कोर. नाउ what all you have to read in current affair? Don't read anything. क्यों? I'm preparing material for you, and once your classes will be over, do your जो तुम जीएस के लिए कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है? But once your batch will be over, you will be on a Telegram channel, and we will be always pasting 1 or 2 articles weekly. 10 दिन में 15 दिन में 1-2 आर्टिकल आएगा, चला जाएगा, लेकिन वो आएगा नहीं यूपीएससी में, समझा? That will keep you updated, but be focused on the class notes, and the class notes will remain relevant for 5 years minimum. वो 5 साल relevant रहेगा वो. Geography doesn't change in 5-6 years. Geography changes only after 5, 7, 10 years. Geography is a dynamic subject, but not as dynamic as PubEd or political science. समझा? PubEd में क्या है? आज तुम कुछ पढ़ा, कल कुछ और लॉ घुस गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नया बन गया, हो गया ना, कोई लेजिस्लेटिव लॉ बन गया. पॉलिटिकल साइंस में क्या चैलेंजेस हो जाता है कि आज जयशंकर कुछ बोला, कल कुछ बोल दिया. आज आया था ना ट्रांसजेंडर इंडिया में, अरे पाकिस्तान वाला वो फॉरेन, क्या नाम है उसका, बिलावल. हाँ भुट्टो. ट्रांसजेंडर नहीं लगता तुमको देख के? वो आया था इंडिया में, तो उसको जयशंकर कैसे ट्रीट किया. लेकिन देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट नेक्स्ट ईयर कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाए इंडिया का, और इंडिया वाला भी बनेगा, वो भी ट्रांसजेंडर ही है. वैसे जो पॉसिबिलिटी है, कंफर्म है. मत सोचो कि तुम लोग को बहुत पॉलिटिकल माइंड है, मुझे पता है. एवरी इंडियन इज कंप्लीटली पॉलिटिसाइज्ड नाउ. आइदर ही इज ऑन द राइटिस्ट फ्रंट और लेफ्टिस्ट फ्रंट. अरे बी ए सेंट्रलिस्ट. नहीं, बी इन द सेंटर, enjoy watching them. He is the best citizen. Why to be a leftist or a rightist? Be a centralist. देखो कि लेफ्टिस्ट कैसे कूद रहा है, उछल रहा है सब. राइटिस्ट कैसे आतंक मचाए हुए. आतंक इन द सेंस कि सब कुछ लगता है खत्म होने वाला है. वो अलग कुछ बोलेगा, ये बोलेगा कि सब खराब ही चल रहा है. तो ये तुमको पोजीशन बीच में लेना है. इवन एज ए सिविल सर्वेंट, व्हाट इज योर पोजिशनिंग? सेंट्रलिस्ट. रिमेंबर इट. एक बात याद रखना आईएएस बनने के बाद, समझा? कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट जाए, तुम्हारा रोल क्या है? बस अपना काम. यू डोंट हैव टू हैव एनी आइडियोलॉजी. जैसे ही इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. मोदी हैज सम इश्यूज, मोदी हैज सम गुडनेस आल्सो. राहुल बाबा, their party has some great things, but Rahul Baba doesn't have anything in him. उसका तो कभी भी बोलते बोलते तार ही छूट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है. वो एक और क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्क गायब हो जाता है उसका. वो देखो एक सिंड्रोम होता है, पिछली बात से आगे का बात कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो भूल गया. वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है. मतलब साइकोलॉजिकली ये बात मैं बता रहा हूँ आपको. यू कैन हैव योर इमोशनल एफिलिएशन. खैर छोड़ो ये सब. बट ऑलवेज बी ए सेंट्रलिस्ट. ओके, नाउ कमिंग टू द some other important issues of related to geography. So there is a talk on the map work. Mapping has been almost removed from your syllabus. Geography optional में mapping is not required. World map, how many questions will be there? 0. India map, how many questions? Only 20 marks questions.
समझे? Only 20 marks questions, and for that I will provide you a booklet, all the places located, all the places and their merits, attributes all written there, printed there, so that will solve your problem. मैपिंग का कोई टेंशन है क्या? जल्दी बताओ, क्योंकि द वेरी ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन इज सर मैपिंग में क्या करना है. बट आई एम टेलिंग यू, मैपिंग इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर योर प्रीलिम्स. इवन दिस ईयर देयर हैव बीन 4 to 5 क्वेश्चंस ऑन मैपिंग. पूछा है ना? बट रिमेंबर, ऑल दीज मैप क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम zone of confrontation. Wherever there is a confrontation in the world, that area was asked. Ukraine पूछा ना, which are the neighboring countries. It was very predictable. Zone of confrontation से, जैसे अभी पूछोगे तो Xinjiang province, China, the Uyghur, the Muslim province of China. तो चाइना के मुस्लिम प्रोविंस में अभी बहुत मेजर चल रहा है कुछ. किसको पता है? Demolition of mosque. They are not allowed to bear दाढ़ी, beards and don't that टोपी, ये सब. Religious identification is not permitted. Religious नहीं, persecution नहीं कहेंगे. Religious identification is not acceptable to a communist government. ऐसे लोग कहते हैं कि रिलीजियस आइडेंटिटी से कंट्री टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट होगा, वगैरह वगैरह. दे डोंट लाइक डाइवर्सिटीज, दैट्स देयर आइडिया. बट प्रेजेंटली द सिंकियांग रीजन इज द बॉइलिंग पॉइंट. पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए ना. पाकिस्तान कुछ बोल ही नहीं रहा है. हाँ, $1 बिलियन पे सब खेल चल रहा है. तो देखो, mapping doesn't have great role as such. So if you are doing map work on daily basis, spending 2 hours time there, trying to be a great geographer, अच्छा नहीं है ये. India mapping we will be doing in the class. I will have a special 4 to 5 classes on India mapping. 5-6 क्लास लेंगे इंडिया मैपिंग पे, ठीक है? और इंडिया मैप हम लोग पूरा कर लेंगे क्लास में. That is one. Then world mapping में I have given some 13-14 videos. Anyone watching them? तो अगर if you are enrolled and if you are going to enroll yourself, you will get 14 videos, video classes on world mapping. समझा? Very exhaustive videos, and that involves geology, climatology. I'm giving you one example. So say you have Andes mountain. So how Andes mountain creates rain shadow effect and how Patagonia becomes a desert, that will be explained with the mapping. Fine. And why certain minerals are found at the place they are found. Such kind of explanation you will find in those videos. तो वो वीडियो क्लासेस हैं, ऐप पे मिलेंगी, वो फ्री है. They are always there on the app, so you can just go through them. Whenever you want, you can go through them. समझ गए? तो ये करना है आपको. But it is not compulsory. You can watch these 14 videos in next 9 months. समझ में आया? Next 5 months, 9 ज़्यादा हो गया शायद. Next 5 months, आराम से कभी कभी देख लेना चाहिए. तो that will be that is how you have to do your mapping. और कोई क्वेश्चन तुम्हारे अंदर में बताओ. देखो, माई कोर्स एक्चुअली बिगिंस व्हेन आई डिक्लेयर दैट नाउ, आज से शुरू. अदरवाइज आई कीप टॉकिंग ऑन डिफरेंट इश्यूज रैंडमली. 15 से ही तुम्हारा जेन्युइन रियल क्लासेस शुरू. 15 को हम लोग मिलेंगे और पूरे सिलेबस को रीस्ट्रक्चर करेंगे. समझा? कोर्स को डिफाइन करेंगे. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ज्योग्राफी का जो लैंग्वेज होता है ना, वो इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स विल बी लिटिल डिफिकल्ट, हार्श. सो इनिशियल
10-15 days, I might appear to be क्या very complex, difficult, अरे यार समझ में नहीं आया, तो you keep all the right to ask me. And after the class मैं बाहर बैठूंगा, they can come out with the questions and issues and we can resolve there. So instead of questioning yourself or questioning your own wisdom, it's better to come out and talk to me. समझा क्या? ये मत सोचना कि अरे ऐसा वैसा मेरे से नहीं हो रहा है, क्या मैं डर गया, आज ये क्या चल रहा है क्लास में. It's better you come out. Because initial 4-5 days minimum, I'm telling you, it will be difficult. Why it will be difficult? Language of geography. Because say if I am teaching oceanography, the language will be drawn from hydrology. And hydrology is a pure science. तो कुछ words ऐसा आएगा which will be very scientific, which you have never heard of. Why subjects like sociology or PSIR gives you the ease? Because their vocabulary is newspaper type. समझा ना? वो जो vocabulary होता है इन subjects का, वो कहाँ होता है? रोज के affair में है वो. So they use the common words, but we geographers use 100 words which are very uncommon. तुम्हारे लिए एक challenge होता है कि you have to learn some 20 to 50 words extra. समझा? जैसे मान लो कि ये क्या है, सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, तो ग्राउंड सरफेस हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे लैंडस्केप, नहीं, टेरेन, टोपोग्राफी, ऐसे कुछ टर्म्स चेंज करता है. तो फॉर ए न्यू कमर इट लुक्स सम टाइम डिफिकल्ट कि यार टोपोग्राफी, टेरेन, क्या डिफरेंस था. So it is better you make a list of your questions and then ask me कि सर ये term क्या था. Then in oceanography I will give you a special vocabulary chart also. समझा? एक vocabulary का chart भी देंगे with the booklet. तो read that vocabulary and कुछ terms आता है, understand आएगा. हिप्सोग्राफिक कर्व. अब हिप्सोग्राफिक अभी से ही कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहा है. हम पहले ही ऑनेस्टली बता देते हैं ना आपको कि मान लो टर्म आ गया, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हिप्सोग्राफिक कर्व. एक टॉपिक मान लो ऐसे है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैरिज. नहीं तो तुमको लगेगा कि मैरिज, अच्छा ये तो हम समझ ही रहे हैं. Today we are going to learn on women. तो तुमको लगेगा कि हाँ ये तो अच्छा साधारण सा है. हम बोलेंगे टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टीएस डायग्राम, सिग्मा डायग्राम. अब तुमको लगेगा यार ये क्या है यार. बट देखो, इट्स वेरी एक्साइटिंग टू लर्न न्यू थिंग्स. मैंने क्या बोला? दोज हु आर एक्साइटेड अबाउट लर्निंग दे कैन लर्न ज्योग्राफी, अदर्स कैनॉट. Negative people can never learn geography. जिन लोगों को, जो बहुत fearful लोग हैं, they should not take geography. जैसे मान लो कोई एक प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन समझते हो, टालना, आज का काम कल करेंगे. They should not take geography. Who should take geography? आज वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया. जो क्यूरियस टाइप का लोग है ना, अलर्ट टाइप का लोग है, ये लोग ज्योग्राफी बहुत जल्दी सीखता है. दे परफॉर्म. प्रोक्रेस्टिनेशन एक बीमारी है इंसान का, वो ऐसे भी आईएएस नहीं बनेगा. बिकॉज आज का काम कल कर लेंगे ना, शाम को कर लेंगे ना. जैसे जिम, मुझे जिम जाना है, आई हैव गेन्ड अराउंड 12-13 kgs इन लास्ट 2 months ट्रैवल. आज मुझे जिम जाना है, मैं नहीं गया. सुबह क्या सोचा मालूम? 11:30 जाएंगे, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद, तो बॉडी में कार्ब्स रहेगा, मजा आएगा. 11:30 हुआ, सोचे कि चलो अभी थोड़ा सा चाय बना लेते हैं. फिर सोचे चाय से गैस हो रहा है, अभी जिम ठीक नहीं है. फिर वो यार अब तो 1:30 तो आई हैव टू गो टू माय क्लास, सो आई एम लीविंग.
अभी ऑनेस्टली जाके देखो, मेरे गाड़ी में पड़ा हुआ होगा जिम का पूरा एक बैग, और मुझे पता है हम फिर नहीं जाएंगे। तो ये कभी खत्म होगा? नहीं होगा ना। ये काम आप मत करो, स्पेशली रिलेटेड टू स्टडीज। ये तो फिर भी चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा टाइम लौट के नहीं आएगा। यू विल नेवर बिकम 21 अगेन, समझा? एंड दिस 2-3 आवर्स विल नेवर कम बैक इन योर लाइफ। ये कभी नहीं लौट के आएगा। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है। और कितना टाइम हो गया? 4:30 हो गया। 1.5 घंटा हो गया तुम्हारे साथ बैठे बैठे, लगभग 1.5 आवर ऑलमोस्ट। 15th को मिले, या कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ, गो अहेड। देखो, it all depends on individuals. His question is how much time I should devote on self-study after the classes. So it all depends on, say, if you are very focused in the class, then maybe 2 hours, because your work will be A, to revise the class notes. That has to be done on daily basis. Don't keep it for the next day. And then second, turning NCERT pages. I didn't say learning, I didn't say studying. I said what? Turning NCERT pages on that particular topic, not the whole NCERT. Like I have taught, say, volcanism. जाओ देखो पेज नंबर 24 on your right side, the last paragraph is on volcanism. मैंने ऐसे ही बोला, 24 याद मत कर लेना, वहां पे वल्कनिज्म है। सो रीड वल्कनिज्म, दैट्स इट। उसके ऊपर लिखा होगा कुछ और, प्लेट टेक्टोनिक, इधर लिखा होगा कुछ और, डोंट रीड इट। 15th को मैं ये सब बताऊंगा, बट ऑलवेज रिमेंबर द टॉपिक विच हैज बीन डन इन द क्लास हैज टू बी रीइंफोर्स्ड बाय रीडिंग दैट पार्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम योर बुकलेट एंड NCERT. समझा? एंड दैट विल इन्वॉल्व 2 hours. So every day we will have 2.5 hour class to 3 hours class. 3 घंटा यहाँ पे करेंगे, और उसके बाद 2 घंटा और टाइम रखो, so 5 hours for geography. Rest 19 hours for you to do whatever you want. Should you refer to any other books? देखो, I will tell you something. The nature of geography varies from topic to topic. Say you are learning geomorphology, class notes will be very sufficient because वो पूरा science है, पूरा geology है, तो क्लास में तुमको 99% सब करना है। मान लो एक टॉपिक है ट्राइब। Now tribe is an open-ended, नहीं? तो I will teach you what is tribe, who is a tribe, what are the attributes of a tribe, how to identify a tribe, what is the criteria to classify a tribe, ये सब मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन मान लो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो who is a tribe, what is a tribe, what are the problems of tribe, what are the challenges for tribal area, how to demarcate tribal area, how to differentiate between tribal area and hill area, समझा? What is the physiological connection of tribe with the nature or the natural ecology, ये हम सब पढ़ा देंगे। But if there is a policy coming next year in tribe, तो हम तो नहीं पढ़ाए। तो some topics are dynamic which you have to refer to newspaper or magazines. कुछ होगा 5% I am telling you, और कुछ टॉपिक्स होगा, जैसे आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज इन ज्योग्राफी ऑल्सो, समझा?
अब ग्लोबलाइजेशन हम ज्योग्राफी में पढ़ा रहे हैं आपको, तो आई विल डिफाइन व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, आई विल क्लासिफाई ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, हम सब पढ़ाएंगे आपको, लेकिन उसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे. देन आई विल टेल यू टू रेफर टू द नोट्स. समझा कि उसमें से अब डिटेल पढ़ लो तुम. समझ में आया ना? उस पे फिर बहुत लंबा नोट्स नहीं लिखवाएंगे, उस पे आपको पढ़ाएंगे, डिस्कशन कर लेंगे, और आपको वी विल बी गिवन सम say 10 pages on globalization. So you have to read that as an article. So that is what is required. As far as books are concerned, I don't refer to any books. I refer to some foreign author books, not Indian books. Because Indian books are not being referred in any good university. You really think that anybody who is a great professor invited in UPSC will ever refer to माजिद हुसैन? नहीं. क्यों? वो तो माजिद हुसैन का दुश्मन है. क्यों? वो तो सविंदर सिंह का दुश्मन है. पूछो कैसे? क्योंकि वो खुद बड़ा प्रोफेसर है, तो अपने से छोटे प्रोफेसर का वो बुक रेफर करेगा तुमको. यू थिंक दैट द प्रोफेसर्स ऑफ JNU आर रीडिंग माजिद हुसैन बुक? दे मस्ट बी रीडिंग Gross Grant. They must be reading some seminal papers. नहीं? So their references are different. हाँ, for a commoner you can go through Savinder Singh, Majid Hussain, there are some good books, Kuller. लेकिन UPSC का जो क्वेश्चंस आ रहा है वो तुमको इन बुक्स में नहीं दिखेगा, और इसी बुक को पढ़ करके मेन सॉल्व नहीं हो रहा है. समझा? और तुम्हारा जो कम्युनिटी है, दे हैव गॉट स्टक कि यार ऑल दिस क्वेश्चंस पता नहीं कहां से पूछ रहा है, पता नहीं कहां से पूछ रहा है, ये कहां से पूछ दिया, ऐसे चल रहा है बाहर में. क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया ज्योग्राफी में, क्वेश्चंस बुक से नहीं आ रहा है, नोट से बाहर आता है. उसका रीजन क्या है? रीजन इज द रेफरेंस बुक्स आर नॉट सविंदर सिंह और माजिद हुसैन फॉर सिविल सर्विसेज. द टाइम इज गॉन. Those big books are very old. They're all great books. I salute them for their hard work, but we will not refer to them. ठीक है ना? We will refer to the booklet, because booklet is a copy-paste material from all the great works of foreign authors, and some of the good material from Savinder Singh and P. Dayal and D.S. Lal and other Indian authors have been extracted and poured into your booklet. समझ में आ गया ना? जो माजिद हुसैन ने पढ़ने लायक था वो मैंने निकाल के बुकलेट में डाल दिया होगा, ये विश्वास है. हाँ, वो कॉपी पेस्ट कर लिया गया है. माजिद हुसैन से मैंने कुछ नहीं लिया है. वैसे सविंदर सिंह का मैं आभारी हूँ, ऑनलाइन पे चल रहा है. कहाँ है सर आप? यहाँ. उनका आभारी हूँ, उनके बुक से मैंने कुछ लिया है, पी दयाल सर के बुक से लिया है, DS लाल सर से लिया है, चोरली एंड बेरी से लिया है, ग्रांट ग्रॉस से लिया है. ऐसे बुकलेट बनाया है. मैंने बुकलेट लिखा नहीं है. इज इट क्लियर टू द क्लास? हाँ, लेकिन मैं बुक लिख रहा हूँ. एस चांद ने हमसे पूरा ज्योग्राफी लिखवाने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ. एस चांद का नाम सुने हो? और आई एम राइटिंग फॉर यूनिवर्सिटीज. मेरा कोई शौक नहीं है कि हम ये सब कोचिंग के लिए या ये सब के लिए लिखें. उसमें लिख रहे हैं हम. तुम लोग देखोगे तो UGC का एक चैनल है व्यास TV, पता है तुम लोगों को? दिल्ली दूरदर्शन का है, DD व्यास है ना. उस पे मेरा 2011 का ज्योग्राफी का लेक्चर्स मिलेगा फॉर UGC पीपल. 2011 में हम काफी यंग थे, तब भी इतना लोग पूछ रहे थे मुझे. 5 साल बीच में गड़बड़ हो गया यार. अभी है, लेकिन वो एक जमाना था, क्या बोलूं, आंख में. अब तो ऑप्शनल के हो ही गए, वो तो पता ही चल जाएगा धीरे धीरे. कभी ना कभी तो हम बाकी देंगे. वैसे आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि आई विल नॉट क्रॉस दोज बाउंड्रीज. आई विल नॉट रिवील माई सेल्फ एवर इन द क्लास, इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड. कई बार बैचेस में आई जस्ट गॉट कैरिड अवे, एंड बिकॉज कई चीजें हाफ बोली जाती हैं ना. जैसे मान लो मैंने बोला क्लास में, एक एग्जाम्पल याद आ रहा है. I just said that because of the Dowry Act, my interview was not good in UPSC,
and I got 60 out of 300, even though I had a decent personality and good speech. नहीं, speaking power था, सब था. I could communicate well. I was a debater, but I got 60 out of 300. ऐसा मैंने क्लास में बोल दिया. अब बोल दिया क्या? डाउरी एक्ट. लोग कुछ नहीं सुना, क्या पकड़ लिया? डाउरी एक्ट. आहा, वो स्टोरी बना दिया, जबकि मेरा कुछ हुआ भी नहीं था यार. वो डाउरी एक्ट घर में हो सकता है, बड़े भाई का हो सकता है, किसी और का भी तो हो सकता है ना. लोग वहां से मिनी निकाल दिया और हो गया चरित्र चित्रण. तो ये होता है, दिस इज ए नुकसान ऑफ टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ समटाइम. ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया. नॉट साइमल्टेनियस. एवरी क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ आंसर राइटिंग फॉर मी. नहीं, हाउ टू राइट प्लेट टेक्टोनिक्स. वंस आई एम इन डिक्टेशन मोड, दैट्स आंसर राइटिंग. But I will have a special classes on how to write a good answer. But I must tell you, there is nothing like good answer. तुमसे पूछते हैं, I have a question for this class. बताओ. Say there are 2500 students writing geography mains. Out of 2500, 500 students scored more than 300. So all the 500 have written similar things? नहीं ना. So all these 500 students who have scored more than 300 were so different from each other. तो एक मॉडल आंसर कैसे हो सकता है बताओ? There are 500 model answers then? नहीं. So a good model answer is hitting the central theme of the question, meeting the demand of the question, and it can be presented in different ways. समझा? You can start anywhere, but you have to meet the demand of the question. तुम अगर कहीं से भी शुरू कर दिए, जैसे आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ मॉनसून. अब एक शुरू करता है, मॉनसून इज द थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन in the planetary trades caused by the shift of ITCZ. बड़ा scientific लिखा. तो this is one approach. Examiner very happy, very good. दूसरा लिखेगा कि monsoon refers to the seasonal reversal of wind. नहीं. अब blah 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 blah. ये भी अच्छा है या नहीं? ये भी अच्छा है. ही इज राइटिंग ऑन सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड. अब ये एंड द शिफ्टिंग एंटी साइक्लोन साइकिल्स ओवर द पेनिनसुला एंड द साउथ इंडियन ओशियन. अच्छा लिख रहा है ये भी. अब बताओ दोनों में अच्छा कौन है? दोनों अच्छा है. बोथ आर साइंटिफिक, बोथ आर एक्यूरेट. सो देयर कैन नॉट बी ए मॉडल आंसर. अब एक थर्ड वन है, सुनो. Third one है, he is writing on monsoon and he started with monsoon term has been derived from Arabic word monsoon, mosin, Malayan word mosin, mosim. ये सब शुरू हो गया. He is doing total बकवास. ये गलत हो गया. क्यों? He is not meeting the demand of the question. ये कहानी टाइप लिख रहा है कुछ. बचपना नहीं लग रहा है इसमें. कितने लोगों को बचपना लगा ये बताओ कि ये मॉनसून मौसम से निकला है? अरे यार क्या तुम छठा क्लास का बात कर रहे हो यहां पे? क्लास 6 का बात क्यों कर रहे हो? जब तुम लिख सकते हो कि इट इज अ थर्मोडायनामिक मॉडिफिकेशन इन द प्रिवेलिंग विंड सिस्टम, तो तुम वो लिखो ना. तो आंसर राइटिंग में देयर कैन नॉट बी ए मॉडल आंसर, बट देयर कुड बी इंफीरियर आंसर एंड सुपीरियर आंसर्स. एवरीवन गेटिंग इट? So writing on monsoon में I took this example of मौसम, ये वो कहानी. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Let's take another example. So someone is writing the climate of India is essentially monsoon type. He is becoming irrelevant. नहीं, वो कहाँ चला गया? Climate of India is monsoon type. अरे you are becoming irrelevant. खैर हम लोग बात करेंगे आंसर राइटिंग पे. So there could be superior answer
There could be inferior answer, but there cannot be a model answer. समझ में आया? हाँ, तुम जो सोच रहे हो ना कि कोचिंग का जो टिपिकल चलता है मार्केट में वही होगा, वो नहीं होगा हमारे साथ. हम लोग जेन्युइन 1000 आईएएस बनाए हुए लोग हैं. समझा? क्लास में इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं पहले तो. तुम्हारा शक्ल में दिखेगा ना कि ऐसे ऐसे कर रहा है, हम पकड़ लेंगे, मेरा सेंसर बोलेगा मेरे अंदर में नहीं समझा ये. फिर आई विल फोर्स माई सेल्फ टू रिपीट, आई टेक ऑल द पेन एंड ऑल योर कंसर्न्स बिकम माई कंसर्न. रहो तो क्लास में, कुछ दिन तो आइए, बिताइए हमारे यहाँ. आइए तो आप, फिर देखिए तो. इसलिए हम एक दिन में 3-4 क्लास नहीं ले पाते हैं. मेरे लिए एक ही क्लास बहुत हेवी हो रहा है. आई एम स्टॉपिंग हिंदी मीडियम बैच फ्रॉम दिस ईयर. मैं अब हिंदी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लास्ट ईयर तक पढ़ाया मैं. मेरा बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होने वाला है. तुमको पता होगा मुखर्जी नगर में कितना बड़ा बैच चलता था. किसी को पता है? नहीं तो बता, हम बताए, अब तो झूठ बोल सकते हैं ना यार. कैसे पता? तो वहीं रहते हो, देखो वहां से आया हुआ है. तो मेरा मुखर्जी नगर में तो एक छत्र राज्य, एक छत्र मतलब दूसरा कोई छत्र भी ना हो. कि मैं वहां पे आई एम स्टॉपिंग. फर्स्ट आई स्टॉप्ड इंग्लिश मीडियम बैच देयर and then I am stopping Hindi medium batch there also. It's a very emotional moment when I think of my Hindi medium batches. इतना इनोसेंट लोग आता था यार, इतना प्यार मुझे मिला हिंदी मीडियम से. इंग्लिश से भी मिलता है, ऐसा नहीं कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन हिंदी वाले लोग थोड़ा इमोशनल होते हैं ज़्यादा. तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम कनेक्शन. खैर कनेक्ट तो हम यहाँ भी खूब हो रहे हैं. पिछला बैच खत्म हुआ ना तो कोई जा नहीं रहा था यहाँ से छोड़ करके. समझा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम कोशिश करेंगे जितना मुझे ईश्वर ने ताकत दिया है कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाएं और तुम्हारे लिए तुमको कुछ बना पाएं. बट अगेन वही बात है, पहले ही मैंने कहा, याद रखना मेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है. अरे ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मुझे आज ही किसी ने दिया है. किसी ने मतलब माँ ने खरीद करके दिया है. पता है क्यों? उनके पास 2000 का नोट था. देखो सारा बात मेरा निकलने लगता है बाहर. उनके पास 2000 का नोट और पापा से पता नहीं कब. खैर छोड़ो, लीव ऑल दिस. चलो, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे एंड stay blessed. We'll meet on 15th and we'll meet in a very professional manner. ठीक है ना? And we'll start learning geography. On 15th I will sketch out the entire program for the coming 120 days and I will declare on which days you will have. देखो टेस्ट कैसे होगा हम बता देते हैं आज ही कि once the topic is completed then you will have test. And for you and for me Sunday is not a holiday. Because I don't want to break the rhythm. शनिवार सैटरडे आ गया, अब सैटरडे को मैं पढ़ा रहा हूं तुमको कोई टॉपिक, वेव चल रहा है, टाइड चल रहा है, वन ऑफ द टाइडल थ्योरीज. अब नेक्स्ट डे गैप नहीं देंगे. क्लियर है ना? तो फॉर यू गाइज देयर इज नो हॉलीडे ऑन संडे. ठीक है? once we complete oceanography, say it took 9-10 days, then you can have 2 days holiday. तुम 2 दिन छुट्टी कर लो, ऐसे चलेगा. ठीक है? तुमको भी एक सेंस ऑफ कंप्लीशन होगा कि हाँ 10 डेज में मेरा ओशनोग्राफी खत्म. 2 दिन रिवाइज कर लो, टेस्ट दे दो, ऐसा होगा. क्या है? ये तो वो है ये तो एनसीईआरटी रीडिंग प्रोग्राम है. समझा? आज कौन सा रीड है? 6 है ना? तो देखो इन दिस पार्टिकुलर
चार्ट, मान लो वी आर स्टार्टिंग विथ ओशनोग्राफी, तो ओशनोग्राफी के पहले क्या पढ़ लेना है, या साथ में along with the classes क्या पढ़ना है, यूनिट 2 7th ओल्ड, चैप्टर 5 7th न्यू, यूनिट 5 11th ओल्ड, चैप्टर 13 and 14 11th न्यू, समझा? So you got to have a combination of old and new NCERT because you are optional students. Had it been maybe GS student, I would have said new NCERT. But optional student के लिए old and new both combined. ये चार्ट का मीनिंग समझ गया? It's a unique thing which has been introduced for your batch. Previously it has not existed. But I discovered that most of my students are not able to read NCERT properly. You know what was the challenge? They will take up 11th NCERT and trying to read everything. अब कम से कम उनको क्लैरिटी है ना, क्लैरिटी है ना, क्या पढ़ना है ओशनोग्राफी में, क्लैरिटी है, क्या पढ़ना है सेटलमेंट में, इनॉर्मस क्लैरिटी है. सो दिस इज ए वंडरफुल वर्क, excellent work by my coordinator. He did it very efficiently. पहले एक और प्रोग्राम बना था, फिर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया. जो लास्ट 15 मई को मिला था ना, उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था. और ये प्रोग्राम मैंने 15 को भी एक वर्कशॉप था, हाँ, तो उसमें एक पेपर मिला था ऐसा ही, वो मैंने रिजेक्ट कर दिया. ये देखो रियल है. इससे एवरीवन विल हैव क्लैरिटी कि किस टॉपिक में क्या पढ़ना है. ये तुम्हारा बहुत ही प्रीसियस पोजीशन है. सबको मिल गया? ठीक है, चलो बाय, टेक केयर.